We are studying Canto 1, Chapter 5, Text 37. नारद मुनि की जो इंस्ट्रक्शन है भागवतम पे उसकी चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने व्यास देव जी को दिए. तो लेट अस बिगिन. ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च. ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नाम संकर्षणाय च. ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नाम संकीर्षणाय च. Akshay, read the shloka. ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धया नमः संकर्षणाय च. पूजा माता जी, Am I audible? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नारुद्ध्याय नमः शंकराय च. Asta, go ahead. ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नमः संकर्षणाय च. Word to word meaning. The sign of chanting the transcendental glory of the Lord. Namaha, offering obeisances unto the Lord. Bhagavate, unto the personality of Godhead. Tubhyam, unto you, Vasudevaya, unto the Lord, the son of Vasudev. Dhimahi, let us chant. Pradyumnaya, Anirudhaya, and Sankarshanaya. All plenary expansions of Vasudev. Namaha, respectful obeisances, Cha, and. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Let us all chant the glories of Vasudev along with his plenary expansion, Pradyumna, Aniruddha and Sankarshana. क्या बोला? हम किसकी ग्लोरीज गाएंगे? वासुदेव की, और साथ में उनकी जो प्लेनरी एक्सपेंशन है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, उनकी भी. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं. तात्पर्य, वन ऑफ यू प्लीज रीड द ट्रांसलेशन. आप में से कोई पढ़िए. Asta, you read the translation. Oh, sorry, purport. Purport. According to Pancharatraka, Narayana is the primeval cause of all expansion of Godhead. These are Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, and Aniruddha. Vasudeva and Sankarshana are on the middle left and right of Sankarshana, and Aniruddha is on the left of Vasudeva. And thus, the four deities are situated. They are known as the four aids, the camp of the Lord Sri Krishna. This is a Vedic hymn of or mantra beginning with Omkara Pranava, and thus the mantra is established by transcendental chanting process, namely Om Namo Dhimahi, etc. 1 second, होल्ड करना. क्या बोला है यहाँ पे? जिससे जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध क्या है? ये चतुर्व्यूह फॉर्म है. लाइक चार फॉर्म्स आ जाती है. प्लेनरी एक्सपेंशन है विष्णु की, भगवान कृष्ण की हम कह सकते हैं. ठीक है. सो पहला वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध. ठीक है. वासुदेव एंड संकर्षण आर ऑन द मिडल लेफ्ट एंड राइट. बीच में लेफ्ट और राइट में होता है. प्रद्युम्न इज ऑन द राइट ऑफ संकर्षण, संकर्षण के दाईं ओर, और अनिरुद्ध है वो बाईं ओर होते हैं वासुदेव के. तो इस तरह से चार डीटीज हैं. तो भगवान की ही क्या है? लॉर्ड कृष्ण की प्रिलिमिनरी इनकारनेशन है, प्राइमेबल इनकारनेशन, एक्सटेंशन है. ठीक है. तो वो बताया यहाँ पे. एंड दिस इज अ वेरी हाइम और मंत्र बिगिनिंग विद ओमकारा प्रणवा. कि कोई भी जो मंत्र है, देखिए ओम इज अ वेरी, ओम रिप्रेजेंट कृष्ण. ओम क्या है? वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है. कोई भी जो मंत्र है वो ओम से शुरू होता है. ओम धीमहि. ठीक है. ओम तत्सत, ओम नमो भगवते. सो इट बिगिंस विद द ओम. दैट ओमकारा इज कृष्ण. ठीक है. आगे का पढ़िए आज तक. The purport is that any transaction, either in the field of fruitive work or in the empirical philosophy, which is not ultimately aimed at transcendental realization of Supreme Lord, is considered to be useless. Naraji has therefore explained the nature of unalloyed devotional service by his personal experience in development of
intimacy between the Lord and the living entities by a gradual process of progressive devotional service activities. Such a progressive march of transcendental devotion for the Lord culminates in the attainment of loving service of the Lord, which is called prema. In different transcendental variedness called rasas, tastes, such devotional service is also executed in mixed form, namely, आगे slide कीजिए, namely Stop here. mixed intuitive work or 1 second. empirical 1 second. speculation. Yeah. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी कार्य है जो फ्रूटी वर्क में होता है, ये एम्पिरिक फिलोसफी हो, अगर वो ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन के, जैसे हम लोगों ने एक भागवतम में श्लोक आप लोगों ने याद भी किया था 1 to 8, कि अगर भगवान नाम के प्रति प्रीति नहीं आती है, ठीक है, रुचि नहीं उत्पन्न होती, तो डेट वर्क इज सिंपली श्रम वही केवलम, तो वो यूजलेस लेबर है, ठीक है। अगर भगवान के नामों के प्रति या उनकी दिव्य एक्टिविटीज के प्रति अगर वो रुचि ना लाए, उनका भागवत श्रवण करने की रुचि ना आए, तो वो कार्य क्या है, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई भी फ्रूटिव कार्य, या अगर आप फिलोसफिकली भी समझने का प्रयास करें, तो अगर भगवान के प्रति उनके लिए ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन की तरफ नहीं होती, तो समय बर्बादी की बात है, ठीक है। इसलिए नारद जी हैज देयरफॉर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अंडरलाइन डिवोशनल सर्विस बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। इसलिए नारद मुनि ने अपने उदाहरण से, देखिए जो आचार्य होते हैं, आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाते हैं, आचार्य कौन होते हैं, जो अपने आचरण से सिखाते हैं। तो नारद मुनि बताना चाहते थे कि अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस की क्या महिमा है, तो वो उन्होंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि मैं कौन था, एक मेड सर्वेंट, एक दासी पुत्र, ठीक है, मगर एक साधुओं का सेवा करने का, संग करने का मौका मिला, उससे मेरा उद्धार हुआ। आई बिकेम इटर्नली ब्लिसफुल, ठीक है, मैं भक्ति में प्रगति कर पाया, भगवान को जान पाया। तो ये डिवोशनल सर्विस रेंडर करने का फायदा हुआ और साधु संग लेने का फायदा हुआ, वो भी जो उन्होंने उन भक्तों की। तो वो चीज उन्होंने कहा अपने खुद के उदाहरण से बताई, ठीक है। अब हमें कोई फिलोसफी बता दे कि डिवोशनल सर्विस जी बड़ी अच्छी है, ऐसे ऐसे है, मगर कोई अगर अपना ही उदाहरण दे, तो वो ज्यादा हम उस चीज को समझ पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे नारद मुनि ने अपना ही उदाहरण दिया। अब जैसे एक बार एक बात आती है, एक भक्त थे प्रभात के समय में, तो प्रभात को बोला कि प्रभात ये जो डिवोटी फलाना, ये ना भक्ति नहीं करता, इसमें उत्साह नहीं रहा कुछ। तो प्रभात ने बोला अच्छा फिर तुमने क्या किया मदद करने में? बोला प्रभात मैंने इसको बताया कि देखो भक्ति कितनी आनंदमयी है, कितने खुश रहता है इंसान, तो करा करो, ये है वो है। तो प्रभात बोलते अगर यही चीज तुमने अपने उदाहरण से बताई होती कि मैं भक्ति करके कितना खुश हूँ, कितना प्रसन्न हूँ, शायद तुम्हें देख के वो ज्यादा मोटिवेट होता रेदर देन स्पीकिंग टू फिलोसफी टू हिम, कि तुमने जो फिलोसफी सुना है इससे अच्छा अगर तुम अपना उदाहरण देते कि देखो मैं कितना खुश हूँ भक्ति में, कितना आनंद ले रहा हूँ, तो उसको देख के शायद उसको इंस्पिरेशन मिलती है, यार ये इतना आनंद ले रहा है तो मैं क्या लैक कर रहा हूँ, मुझे भी तो लेना। तो वो चीज हमें देखने, आई रिमेम्बर माय स्पिरिचुअल मास्टर अभी लाइक वो आश्रम में ही थे, मतलब टेम्पल में ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने, तो ही वाज द ब्रह्मचारी दैट टाइम। तो काफी भक्तों ने बोला कि देखो प्रपात को सरेंडर कर दो, क्योंकि गुरु का होना बहुत जरूरी है, काफी शास्त्र कोट करके बताया, और गुरुदेव माने नहीं, शरणागति होने को नहीं माने। फिर एक दिन राधा कृष्णा टेप है जॉर्ज हैरिसन ने प्रोड्यूस की थी, वो था, उसमें वो प्रेयर चल रहा था, भक्तगण वो बड़े प्रेम भाव से गा रहे थे वो प्रेयर। क्या गा रहे थे वो? संसार दावा नरलीला लोक ध्यानाय कारुण्या घना घना प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब जब गुरुदेव ने ये सुना, भक्तों को ये गाते हुए इतने प्रेम से सुना, तो उनको लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, ये लोग इतने आनंद इतने प्रेम से गा पा रहे हैं अपने गुरु के लिए, इसका मतलब मैं तो कुछ मिस कर रहा हूँ, कि मैं इतना प्रेम नहीं रिलीज कर पा रहा, आनंद नहीं रिलीज कर पा रहा। फिर उन्हें लगा कि नहीं, नाउ आई एम रेडी टू सरेंडर टू प्रभुपाद, मैं भी ये रिलीज करना चाहता हूँ। तो ये उदाहरण से हम ज्यादा सीख पाते हैं, या बता रही हूँ। तो तभी आचार्यगण अपने उदाहरण से बताते हैं, उन्होंने उदाहरण से इस्टेब्लिश किया कि देखो ये चीज तुमने मिस की अपने चीजों में, ये जो भी स्क्रिप्चर्स दिए। तो डिवोशनल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय नारद मुनि थ्रू हिज ओन एग्जांपल, ठीक है। दिस इज ट्रू आचार्य। प्रभुपाद भी कोई भी चीज ऐसी नहीं कहते थे भक्तों को जो वो खुद नहीं करते थे। प्रभा ने मंगल आरती का स्टैंडर्ड सेट किया, तो प्रभात खुद 4 बजे उठे हुए होते थे,
चाहे वो कितना ही रात को लेट सोए कुछ भी, मगर मंगल आरती नहीं मिस करते थे, वो खुद स्वयं मंगल आरती में होते थे। भक्तों को भी लगा कि नहीं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली जो खुद नहीं करते थे, तो लाइक दे टीच थ्रू देयर ओन एग्जांपल, ठीक है। Such a progressive march of transcendental devotion for the Lord culminates in attainment of loving service of the Lord, which is called prema, different transcendental variegatedness called rasa, ठीक है। ये भक्ति है, 5 तरह के रसा होते हैं, 12 है वैसे, बहुत सारे हैं, 5 मेन होते हैं, जैसे कंजुगल है, वात्सल्य है, भक्त का है, दास का है, तो इस तरह से बहुत सारे रसों होते हैं, इनको हम एंजॉय कर सकते हैं। मगर पहले हम लोग सेवक के भाव में सेवा करें, फिर हम इन चीजों को वैल्यूज को आगे समझ पाएंगे। अगर सेवक के रूप में जो हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हम प्रेमा तक भी पहुंचते हैं। मगर कहते हैं ना कि जैसे साधु संग, भजन क्रिया, श्रद्धा के बाद थोड़े हम साधु संग लिए, फिर हमारी भजन क्रिया शुरू होती है, भजन क्रिया होती है तो अनर्थ निवृत्ति होती है। अनर्थ निवृत्ति मतलब हमारे हृदय से क्या होता है, अनर्थों का सफाई शुरू हो जाती है। तो जब अनर्थ की सफाई होती है तो निष्ठा बनती है, फर्म कन्विक्शन आती है कि नो। देखो फर्म कन्विक्शन कब आती है, अनर्थ निवृत्ति के बाद। अब कल कौन कौन बोल रहा था कल की नहीं, थोड़ा लग रहा है कि प्रोसेस का क्या फायदा। वो क्या है कि निष्ठा नहीं है ना, भी फर्म कन्विक्शन नहीं है, तो कब आती है, जो हमारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। वो अनर्थ है हृदय में, तो मतलब माया अभी भी है ना, तो माया अभी बताएगी भाई छोड़ो ये सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मगर अगर हम इस प्रोसेस को करते रहे, ठीक है, साधु संग लेते रहे, भजन क्रिया करते रहे, तो अनर्थ क्या है अपने आप समाप्त होंगे, और फिर हमारी फर्म कन्विक्शन बन जाती है, नहीं यही प्रोसेस है। और फिर रुचि आती है, रुचि मतलब स्वाद आने शुरू हो जाता है, हमें मजा आना, मतलब वी लाइक टेकिंग दैट टेस्ट डेवलप हो जाता है हमारा हायर टेस्ट। फिर आसक्ति, मतलब ये जो भौतिक चीजें इनसे हमारी विरक्ति हो जाती है, और फिर भाव आता है, और फिर प्रेमा स्टेज आती है। मगर अनर्थ निवृत्ति तक जो ग्राफ होता है वो ऐसे में होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, हमें ना मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब अनर्थ निवृत्ति होगी उसके बाद ग्राफ नीचे को जाता है, मतलब बड़ी आसानी से स्मूथ राइड हो जाती है, फिर रुचि निष्ठा बड़ा आसान हो जाता है। मगर अनर्थ निवृत्ति तक हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। क्या मेहनत करनी पड़ती है, साधु संग लेना है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली हमें सुनते रहना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, और उससे हमारा जो है क्या है, अनर्थ निवृत्ति आएगा, ठीक है। Such devotional service is also executed in mixed form, namely mixed intuitive work, empiric, philosophical speculation. अब देखिए जो भक्ति शुद्ध नहीं होती, जो मोटिवेटेड होती है, जो कुछ लोगों के मोटिव्स होते हैं उसको कर्म मिश्रित भक्ति कहते हैं। कर्म मिश्रित मतलब कि हम लोग कुछ मिक्स है, हमारी जो चीजें मिक्सचर है, प्योर फॉर्म नहीं है, ठीक है, क्या है वो, मिक्सचर है। तो हम लोग बात कर रहे थे कर्म मिश्रित भक्ति की, ठीक है। कर्म मिश्रित भक्ति होती है फ्रूटिव एक्टिविटीज के साथ में जो भक्ति करते हैं, मतलब हमारे कुछ मोटिव्स हैं, भक्ति तो हम कर रहे हैं मगर हमारे कुछ मोटिव्स भी है, मुझे कुछ चाहिए भक्ति करने से, ठीक है। तो कर्म मिश्रित भक्ति रहती है। तो जब तक आपके जो मोटिव्स हैं वो शुद्ध ना हो जाए, पूरी तरह भक्ति में ना आ जाए, तो प्योर डिवोशन नहीं आता, ठीक है। प्योर डिवोशन नहीं, अभी भी आप चाहते हो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा हो जाए, तो इसका मतलब यू आर कंसिडरिंग गॉड एज एन ऑर्डर सप्लायर, ठीक है। हमें भगवान को ऑर्डर सप्लायर नहीं वो समझना है कि ये अच्छा मेरी ये इच्छा ये पूरी कर देना, नहीं, ही इज नॉट अ ऑर्डर सप्लायर, ही इज द सुप्रीम मास्टर, वी आर द सर्वेंट। सर्वेंट डिमांड नहीं करता, सिर्फ सेवा करता है, ठीक है। तो वो प्योर डिवोशनल सर्विस आ जाती है। ये स्पेकुलेट करते हैं हम लोग अपने ज्ञान से, भगवान को एज इट इज समझने का प्रयास नहीं करते अपने मन के हिसाब से, अच्छा नहीं ऐसा है ऐसा, तो वो भी गलत आ जाता है। तो हमें कर्म मिश्रित मिक्स्ड डिवोशनल लाइफ नहीं करनी है। मिक्स्ड डिवोशनल लाइफ कैसी होती है, जैसे आपने आग लगाई और साथ में पानी डाल रहे हो, तो आग लगेगी क्या, नहीं लगेगी, पानी से बुझ जाएगी ना। तो आप इग्नाइट तो कर रहे हो भक्ति, मगर आप भौतिक आसक्ति अभी बनाए रख रहे हो, तो क्या उससे इतना इफेक्ट पड़ेगा कि शुद्धता तो नहीं आ रही ना। सो वी हैव टू गो फॉर प्योर डिवोशन, हमें शुद्ध भक्ति की तरफ जाना है। तो उसमें हमें सिंपल भगवान की सेवा करनी है। और शिक्षा अष्टकम प्रेयर्स जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है, उसमें बहुत सारे प्रेयर्स है, लाइक 8 प्रेयर्स है, वो सारा एक सेंस बताता है भक्ति का। तो अगर आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि हमें कर्म मिश्रित नहीं, शुद्ध भक्ति की तरफ जाना है, ठीक है। जस्ट वी वांट प्योर डिवोशन, ठीक है। हमें भी ये प्रेयर करनी चाहिए, आई जस्ट वांट टू बिकम अ प्योर डिवोटी, आई जस्ट नीड प्योर डिवोशन, आई डोंट वांट एनीथिंग। ऐसा चेतन न धनम न जन्म न सुंदरम कविता माम जो गिरीश खामे, मुझे धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, फॉलोअर नहीं चाहिए, विमेन नहीं चाहिए, वेल्थ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट प्योर डिवोशन। जन्म आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ, भौतिक जगत में भी जन्म लेने कोई बात नहीं,
मगर शुद्ध भक्ति चाहिए। शुद्ध भक्ति करने पे ही हम लोग उसको रियली एंजॉय कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे भक्ति में होने का, नहीं तो हम उस चीज का अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है। आगे लिखा है, now the question which was raised by the great rishis headed by Shaunaka regarding the confidential part of Suta's achievement through the spiritual master is explained herein by the chanting of this hymn consisting of 33 letters। ठीक है, अब शौनक ऋषि ने एक सवाल पूछा था कि सूत गोस्वामी की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी जो अपने गुरु से मिली उनको, तो वो यहाँ पे बताई गई है। दिस मंत्र इज एड्रेस टू द 4 deity, the Lord with his plenary expansion. The central figure is Lord Krishna because the plenary portion has aided the camps. The most confidential part of the instruction is that one should always chant and remember the glories of the Lord Shri Krishna. So most confidential जो चीज उन्होंने धारण की अपने गुरु से वो क्या थी? Always chant and remember the glories of the Lord. चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? Always remember Krishna, never forget Krishna. उन्होंने दो चीजें हमें बोली थी, क्या बोली थी? Always remember Krishna, never forget Krishna. आई बात समझ? आप लिख लीजिए कहीं पे, अपनी एक डायरी में या अपनी दीवार पे अच्छे से लिख दीजिए इसको, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। जब ये चीज याद रहेगी, बार बार देखोगे, हाँ ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? ऑलवेज चैंट एंड रिमेम्बर द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। अब जब वेदांतिस्ट जो मायावादी सन्यासी थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया था, कहा कि आप जो है ये क्या पागलों की तरह नाचते गाते रहते हो, ये थोड़ा ना सन्यासी का काम होता है। सन्यासी काम होता है वेदांता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, है ये क्या लगे हो आप, हरि नाम करते रहते हो, नाचते रहते हो पागलों की तरह इधर उधर, ये कोई सही तरीका नहीं, सन्यासी को शोभा नहीं देता, शास्त्र पढ़ो आप। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया था? देखिए, चैतन्य महाप्रभु कहते जब मैंने अपने गुरु से दीक्षा ली तो उन्होंने मुझे कहा तू मूर्ख है। कौन है तू? तू मूर्ख है, तुझे शास्त्र नहीं समझ आ सकते वेद, तू बस ये हरिनाम कर, इसलिए तेरा उद्धार होना है, तू और कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को शास्त्र ज्ञान नहीं था, बहुत, he was a Sanskrit scholar, he knows everything, but तभी तो उन्होंने मायावादी मोहन भट्टाचार्य का उद्धार किया था, उनको भक्त बना दिया था। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु was well versed in the shastra, but he wanted to say कि जगलरी, वर्ल्ड जगलरी से कुछ नहीं होने वाला शास्त्र से, वेदांता से। We have to chant the holy names। कलयुग में एक ही चीज है जो उद्धार कर सकती है, वो है हरे नाम एवं केवलम, हरे नाम एवं केवलम। So only chanting of the holy names and spreading the glories of the Lord Krishna can help one to revive his constitutional position and can go back home back to Godhead. So it's only through that. So this is the main thing that Suta Goswami received from his spiritual master, that is to chant and remember the glories of Lord Shri Krishna. So it's very important. Okay? Along with these different plenary portion expended as Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Niruddha. These expansions are the original deities for all other truths, namely either Vishnu Tattva or Shakti Tattva. तो ये चार पोर्शन है भगवान के, मतलब भगवान कृष्ण मिडिल में होते हैं, उनके चारों तरफ चार चतुर्व्यूह फॉर्म है ये वाला, आपने शायद देखा होगा, ये आता है, फिर आई विल शो यू। यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, मैं आपको दिखाऊंगी उसका इमेज ना, यहाँ पे शो नहीं कर रहा अभी। सो भगवान कृष्ण बीच में होता है, चारों तरफ संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध होते हैं। सो दीज आर दी विष्णु तत्व। ठीक है, द मेन एसेंस फ्रॉम दिस वर्स इज टू ऑलवेज चैंट एंड रिमेंबर द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। ठीक है, इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्ति मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सा सम्यक दर्शना पुमान। क्या लिखा है? Thus he is the actual seer who worship in the form of transcendental sound representation the supreme personality of Godhead Vishnu, who has no material form. क्या बोला? He is the actual seer who worship in the form of transcendental sound representation supreme personality of Godhead Vishnu, who has no material form. तो उनका material form नहीं होता, ये हम भगवद गीता में भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, I'll read out the purport क्योंकि our present senses are all made of material elements and therefore they are imperfect in realizing the transcendental form of Lord Vishnu. जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मनुष्य है उसमें चार प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, कौन से दोष होते हैं, कौन बताएगा, किसको याद है? यस,
बताइए, व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स? यस आस्था, बोलो। हरे कृष्णा, बोलो माता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्ण माता जी। हरे बोलो। कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है। To be get mistaken, to be get cheated, imperfect senses, and to be get Illusion, like cheated, mistaken, and illusion. Yes. मिस्टेकन, चीटिंग, इल्यूजन और इम्परफेक्ट सेंसेस। तो ये 4 प्रकार के दोष है। तो जब हमें ये 4 प्रकार के दोष है तो हम इस पे ट्रांसेंडेंटल भगवान का दिव्य रूप कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। ठीक है। He is therefore worshipped by sound representation via the transcendental method of chanting. इसलिए जो भगवान की वर्शिप है वो साउंड वाइब्रेशन से होती है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ठीक है, चैंटिंग से। So anything which is beyond the scope of experience by our imperfect senses can be realized fully by the sound representation. तो कोई भी चीज जो हमारी इंद्रियों से परे है, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उसको हम साउंड रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं। A person transmitting sound from a far distant place can be actually experienced. ठीक है। अब कोई व्यक्ति बहुत दूर है आवाज लगाए तो हम सुन सकते हैं ना, समझ सकते हैं, मगर उस व्यक्ति को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मगर सुन तो सकते हैं। तो उसी प्रकार से the sound vibration by which we can connect with the supreme person. A person okay, if this is materially possible, why not spiritually? मटेरियली भी ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए, अब हम देख नहीं सकते मगर फोन पे बात तो कर लेते हैं ना, साउंड वाइब्रेशन। तो उसी प्रकार से तो भगवान से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द साउंड वाइब्रेशन। This experience is not a vague impersonal experience. It is actually an experience of transcendence to the spirit of Godhead, who possess the pure form of eternity, blissful and knowledge. तो हम भगवान को सीधा हरि नाम जप करने से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, we can connect with him. In the Amarkosha Sanskrit dictionary, the word Murti carries import in twofold meanings, namely form and difficulty. Therefore, Amritikam is explained by Acharya Sri Vishwanath Chakravarti Thakur as meaning without difficulty. The transcendental form of eternal bliss and knowledge can be experienced by our original spiritual senses, which can be revived by the chanting of the holy mantra or transcendental sound representation. तो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उसको हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? By chanting of the holy name. Such sound should be received from the transparent agency of one of our spiritual master, and chanting may be practiced by the direction of spiritual master. तो हमें ये जो मंत्र है दीक्षा में किससे लेना चाहिए? एक बोनाफाइड गुरु से, और उसके अधीन में रह के जप करना चाहिए। That will gradually lead us nearer to the Lord. This method of worship is recommended in Pancharatrika system, which is both recognized and authorized. The Pancharatrika system has the most authorized codes for transcendental devotional service. Without the help of such codes, one cannot approach Lord, certainly not by dry philosophical speculation. The Pancharatrika system is both practical and suitable for this age of Karan. The Pancharatra is more important than the Vedanta for this modern age. So Pancharatra जो विधि है वो ज्यादा important है वेदांत शास्त्र पढ़ने से। तो मतलब कि जो जप है, I think is foremost very important in this Kali Yuga. This is what is going to speak of. कि हरि नाम जप करना बहुत important है। Through that only you can connect with the supreme person. ठीक है, जैसे बोला गया कि भगवान कलयुग में अपने नाम के रूप में डिसेंड हुए। He has descended in the form of the holy names. So जो हरि नाम के रूप में भगवान डिसेंड हुए हैं, तो हमें उनसे कनेक्ट करने का माध्यम भी जप ही है। तो हमें चैंटिंग करना है थ्रू द कीर्तना, थ्रू दिस चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स वी कैन कनेक्ट विद द सुप्रीम पर्सन. दिस इज द easiest and the sublime method, and one can experience the presence of the Lord through just chanting the holy names. ठीक है, so it's now 8:32. So we have some time, so I will open up for question and answer. और किसी का कुछ कमेंट है या कुछ प्रश्न आप पूछना चाहें तो प्लीज गो अहेड, और इफ नथिंग सो देन वी कैन स्टॉप. ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 श्लोकास बचे हैं, तो कल ये खत्म हो जाएगा. सो देन विल बी मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर. सो हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. यस, हरे कृष्ण. यस मास्टर. माता जी, हम बात कर रहे थे इम्परफेक्ट सेंसेस, मतलब 4 दोषों की. उसके बाद बोलते हैं साउंड वाइब्रेशन. माता जी, ईयर्स आल्सो कम्स इन ईयर, सेंसेस, इम्परफेक्ट सेंसेस. और जैसे हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि कभी भी साउंड्स होते, जैसे
कभी ऐसे होता है कि वो हमें भी गड़बड़ कर देते हैं, है ना, साउंड सुन के भी कि अच्छा ये गलत है, तो फिर ऐसे कैसे बात यहाँ पे मेंशन कर दे कि साउंड वाइब्रेशन से हम उसको समझ सकते हैं? बिकॉज ये जो साउंड वाइब्रेशन है, जैसे बोलने की बात आ रही है ना माता जी, देखिए बात यह है कि हम लोग मंत्र सही उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको सुनेंगे भी। ये जो मंत्र है इसको अगर इम्परफेक्टली भी सुनते हो तब भी फायदा है। अब देखिए जो चाइनीज लोग है वो इसका सही उच्चारण नहीं करते, क्या बोलते हैं वो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, दे डोंट इवन रिसाइट द प्रॉपर मंत्र, बट स्टिल द बेनिफिट इज देयर, अंडरस्टैंडिंग। इम्परफेक्ट क्या हुआ कि जो सही से आप परसीव ना कर पाए। अब जैसे सांप है तो उसको रस्सी समझ ले, रस्सी को सांप समझ ले, तो ये इम्परफेक्ट हो गया, है ना। तो अगर आपको अगर सुनने में अगर दिक्कत भी हो जाए, गलत आपने शब्द सुने, but still the potency is there, understanding? Asta, this maha mantra Yes. contains so much potency, even if you are imperfect it can make you perfect. Yes, Understood? no doubt, Hare Yeah. और कोई Krishna प्रश्न? Mata. No, Mataji. Okay. और किसी का कोई प्रश्न है, और any personal thing also? Yes पूजा माता जी, what is your understanding? हाँ जी बोलिए। माता जी एक ना क्वेश्चन भी था, लाइक नो कि गलत है, मतलब नहीं पूछना चाहिए, बट स्टिल एक बार बार माइंड में आता है कि मतलब माता जी जैसे लाइक हाँ पूरा वर्ल्ड को कृष्णा ने बनाया ना, तो फिर कृष्णा को किसने बनाया? मतलब लाइक अगर अभी तो भगवान है, अगर हम कि भगवान ने क्या कहा, कल हमने पढ़ा कि ही इज द ओरिजिन, भगवान स्वयं ओरिजिन है हर चीज के, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनको किसी ने नहीं बनाया, तभी तो वो भगवान है। अगर भगवान को भी किसी ने बनाया तो वो उनसे परे ऊपर होते ना। हाँ नहीं मतलब ऐसे मन में आ रहा था कि अगर हम इतना लाइक मेहनत करके हम कृष्णा वहां पे पहुंच गए और पता लगा वहां जाके भी और मेहनत करके कोई और भगवान है, तो मतलब इनकेस गोलोक भी गए वहां पे कुछ और है, तो मतलब लाइक ऐसा मन में आ रहा था कृष्णा कि इज द सुप्रीम। ये सारी जगह भी पिछले दिनों क्या पढ़ रहे हैं हम लोग भगवत गीता भागवत में, इज द कृष्णा ओनली द सुप्रीम पर्सन हु इज द ओरिजिन, ही इज द ओरिजिनल पर्सन, बाकी सब उनके इनकारनेशन, उनको किसी ने नहीं बनाया। अगर उनको किसी ने बनाया होता तो फिर वो भगवान होते, बट कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन, ही इज द सुप्रीम फादर। ये भगवत गीता में भी है, तभी तो हम शास्त्र पढ़ते ना, ताकि हमें कन्विक्शन आ सके कि शास्त्र में भी बताया है, इसलिए ठीक है। उनका कोई ओरिजिन नहीं है, वो स्वयं ओरिजिन है हर चीज की जी। और कुछ कहना है? नो मत है। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ कहना है? मोनिका, अक्षय, ये सेक्शन पंचरात्रि का सिस्टम क्या है, उसमें क्या बताया गया है? क्या कह रहे हो? वो पंचरित्रि का सिस्टम बताया ना प्रबंध एनालिसिस, क्या बताया? वो पंचरित्रि का सिस्टम। पंचरात्रि का सिस्टम मींस फॉलोइंग, मतलब चैंटिंग करते हुए, पंचरात्रि का मतलब एक विग्रह रूप में हम लोग उनको वर्शिप करते हैं और चैंटिंग करते हैं भगवान को, दैट पंचरात्रि का सिस्टम, ठीक है। मतलब एक वेदी भक्ति फॉलो करते हुए, वेदी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। इसके बारे में और डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो इतना ही है, ठीक है। फाइन अक्षय, जैसे माताजी। और किसी का कोई प्रश्न है? Okay, if nothing, then we will be stopping up here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Baki hum Bhagavad Gita discussion will be in the evening. So we'll discuss in the evening. Okay. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gandhra Srimad Bhagavatam ki Jai, Shri Prabhupada, all the somebody would